Hi, good morning, students. In my previous lecture on CRPC, we were on section 31. Yesterday, we had completed imprisonment in lieu of fine in section 30. We read the entire law of imprisonment in lieu of fine in context of section 64, 65, 66, 67, 68, and 69 of IPC. And then the powers which were curtailed as regards a magistrate under section 30. We then went on to section 31, which deals with consecutive sentences. I yesterday explained to you that what is the meaning of the word a consecutive sentence and also what is the meaning of the word a transaction. Section 31 deals with various offenses which are committed in one transaction. एक ट्रांजैक्शन में जो ऑफेंसेस हो रहे हैं उनको कवर करता है. So one thing is very important, that section 31 only deals with various offenses which are committed within one transaction. One transaction का मैंने आपको मतलब बताया था. एक ट्रांजैक्शन में जो जो ऑफेंस हो रहे, फॉर एग्जांपल आई टोल्ड यू, कोई मर्डर करने आया है, उसके घर के अंदर पहले हाउस ब्रेकिंग कर रहा है, उसका सर्वेंट उठ गया, उसकी पिटाई कर दी, दान दून टूट गया, उसका ग्रीवियस हर्ट हो गया, फिर मर्डर किया, तो कायदे से 3 ऑफेंसेस हो गए इस ट्रांजैक्शन में. तो तीनों ट्रांजैक्शंस कायदे से, आई टोल्ड यू द बेसिक जूरिस्प्रूडेंस, all offenses have to be treated separately, tried separately, punished separately. बट अगर हम हर ऑफेंस को सेपरेटली ट्राई करें, वो भी एक ट्रांजैक्शन में, तो बहुत लंबा चल जाएगा. इसीलिए वी हैव अ सिस्टम ऑफ जॉइंडर ऑफ चार्जेस इन CRPC. So all offenses must be treated separately, can be tried jointly because of CRPC, but have to be punished separately. Let's go through the section now. Section 31. Section 31, subsection 1. When a person is convicted at one trial of 2 or more offenses. So here the word is one trial. When a person is convicted at one trial को underline कर लो. Section 31 का base है one trial. The court may, subject to the provisions of section 71 of IPC, sentence him for such offences to the several punishments prescribed therefore, which such court is competent to inflict. जब एक ट्रायल पे एक से ज्यादा ऑफेंसेस के लिए, 2 और मोर ऑफेंसेस के लिए कन्विक्शन हो गया, देन सब्जेक्ट टू सेक्शन 71 IPC, जो कॉम्पिटेंट कोर्ट है वो उसको हर एक सजा अलग देगा. सेवरल पनिशमेंट्स, जो कोर्ट की पावर है. इन अदर वर्ड्स, अगर कोई JM 1 सपोज सेक्शन 409 IPC को ट्राई कर रहा है जहां पे लाइफ इंप्रिजनमेंट है, तो उसकी पावर तो 3 साल है. तो वो 3 साल विच द मैजिस्ट्रेट हैज द पावर, द कोर्ट हैज द कॉम्पिटेंसी. सो प्लीज रिमेंबर, यहां से हमें पता चलता है कि जब एक ट्रांजैक्शन, एक ट्रायल में 2 से ज्यादा ऑफेंसेस का कन्विक्शन होता है, तो कोर्ट अपनी पावर से ज्यादा सजा नहीं दे सकता, इवन दो ऑफेंस में सजा ज्यादा दी गई हो. तो ये अगर अब 10 साल की सजा है और मेरी पावर ही 3 साल है, तो मैं 3 साल से ज्यादा नहीं दे सकता. अब इसके अंदर जो वर्ड आया था, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 71 IPC. लेट्स नाउ गो टू सेक्शन 71 IPC. Section 71 IPC. Limit of punishment of offense made up of several offenses. जहां पे बहुत सारे offenses हैं, उनमें maximum punishment कितनी दी जाएगी? Let's see. इसको पैरा वाइज देखते हैं. पैरा 1. Where anything which is an offense is made up of parts, any of which parts is itself an offense, the offender shall not be punished with imprisonment of more than one of such offences unless it be so expressly provided. जहां पे जो ऑफेंस है
वो बहुत पार्ट्स में है। ए ने बी को 10 चांटे मारे, कायदे से 10 बार हर्ट हुआ है, पर हम इसको एक सिंपल हर्ट लेंगे। एक सेक्शन 323 लगेगा। मैंने आपको 10 बार डंडे से मारा, एक ही सेक्शन 323 लगेगा। सपोज मैंने 100 बार डंडा मारा तो भी 323 है। नहीं तो क्या होता, 323 की 1 साल सजा, 100 साल सजा हो जाती अगर 100 डंडे मारे। तो एक ऑफेंस अगर बहुत सारे पार्ट्स में बनता है तो एक ही सजा दी जाएगी। इसके बारे में वी हैव इलस्ट्रेशन ए। A gives Z 50 strokes with a stick. Here A may have committed the offense of voluntarily causing hurt to Z by the whole beating and also by each of the blows which make up the whole beating. If A was liable to be punishable for every blow, he might be imprisoned for 50 years, one for each blow. But he is liable to only one punishment for the whole beating. तो पूरी मार पिटाई में उसने डंडे मारे, घुसे मारे, लात मारी, सारों का एक ही सेक्शन बनेगा 323। तो जहां पे an offense is made up of parts, only one punishment will be given. ये सारे जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं 71, ये इंटरव्यू में बहुत बार डिस्कस है। सेक्शन 71 हमारा इंटरव्यू का सेक्शन है और ध्यान रखना है, इसको इंटरव्यू के लिए मार्क करके रख लेना। Para 2, where anything is an offense falling within two or more separate definitions of law in force for the time being by which offenses are defined or punished. कोई ऐसा ऑफेंस है जो कायदे से दो डेफिनेशंस में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट। हर्ट क्या होता है? वॉलंटरली कॉजिंग बॉडी हर्ट, डिजीज और इन्फर्मिटी। पर अगर हम जाते हैं 322 में, what is the definition of a grievous hurt? A hurt becomes grievous hurt when it is of these 8 types. तो अब ग्रीवियस हर्ट के अंदर ही हर्ट आ गया। ग्रीवियस हर्ट कंटेन्स हर्ट एंड दिस इज द रीजन व्हाई हम जब ग्रीवियस हर्ट लगाएंगे तो हर्ट अलग नहीं लगाएंगे। तो जहां ग्रीवियस हर्ट हुआ वहां पे हर्ट अलग सेक्शन नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि हर्ट इज कंटेन्ड इन ग्रीवियस हर्ट। दोनों का कैरेक्टर सेम है, बस एक ही चीज है, उसमें कोई एडिड एलिमेंट नहीं है। एडिड एलिमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि हर्ट के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स ग्रीवियस हर्ट में है। ग्रीवियस हर्ट में कोई नई चीज नहीं जुड़ रही है। तो जहां कोई नई चीज नहीं जुड़ रही है और दोनों के कॉन्स्टिट्यूएंट सेम है, बस डिग्री का फर्क है, वहां पे हम लोअर ऑफेंस को नहीं लगाते, वहां हम सीधा हायर ऑफेंस को ही लगाते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या थेफ्ट और रॉबरी एक है? क्या मैं थेफ्ट और रॉबरी अलग अलग लगा सकता हूं? या जहां मैं रॉबरी विद हर्ट कर रहा हूं, ये बेटर एग्जांपल लेते हैं, 382 लेते हैं, जहां रॉबरी के साथ हर्ट भी हो गई। अब रॉबरी का एक पार्ट है हर्ट। ये बहुत ध्यान से सुनना प्लीज, ये बहुत ही टेक्निकल पॉइंट है। रॉबरी क्या होती है? When a theft is committed with death, hurt or wrongful restraint or a fear of death, hurt or wrongful restraint. 382 कहता है रॉबरी विद हर्ट की पनिशमेंट ज्यादा है। तो क्या ये दो सेपरेट ऑफेंसेस हैं? क्या रॉबरी एंड रॉबरी विद हर्ट अलग दो ऑफेंसेस हैं, अलग अलग सजा मिलनी चाहिए? आंसर इज यस। क्यों? रॉबरी क्या है? थेफ्ट।
जब तक आपने बॉडी हार्म नहीं पहुंचाया तो अभी तक वो सिर्फ फियर तक है। जब आप रॉबरी कर रहे हो, रॉबरी बाय थेफ्ट, थेफ्ट के टाइम पे आपने रॉबरी जब कर रहे हो, थेफ्ट की सिंपल थेफ्ट नहीं है, थेफ्ट के अंदर एक एडिड एलिमेंट जुड़ गया, फियर ऑफ डेथ, हर्ट और रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट। चाकू दिखा के मैंने आपसे आपकी चेन खींच ली, रॉबरी हो गई। बट जहां मैंने आपको चाकू लगा दिया, मार दिया हल्का सा और खून निकल आया, अब एक एडिड एलिमेंट जुड़ गया उसका हर्ट में। इसीलिए ये दो अलग ऑफेंसेस आ गए, क्योंकि हर्ट अलग चीज है, मुझे पेन हुआ। एक तरफ आपने थेफ्ट रॉबरी की मेरी, और एक तरफ मुझे पेन किया। इसीलिए दो अलग ऑफेंसेस हैं। रॉबरी विद रॉबरी caused with hurt are two specific offenses. इसमें दो अलग तरह के ऑफेंसेस जुड़ रहे हैं। बट जब आप हर्ट और रॉन्गफुल और ग्रीवियस हर्ट की बात करते हो, डिफरेंट तरह के ऑफेंसेस नहीं जुड़ रहे हैं। हर्ट ही है वो भी हर्ट है, बस हर्ट का एग्रावेशन है, दैट्स इट। कोई नया टाइप का ऑफेंस नहीं जुड़ रहा उसमें। इसीलिए ग्रीवियस हर्ट कंटेन्स हर्ट, but robbery along with hurt is specific offense. It is a separate offense from robbery, क्योंकि उसमें दो अलग तरह के offenses जुड़ रहे हैं। ये एक बहुत ही बेसिक पॉइंट है, क्योंकि जब हम जॉइंडर ऑफ चार्जेस में जाते हैं ये प्रॉब्लम आता है। और बहुत सारे जजेस को भी, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो बन गए, उसको ये प्रॉब्लम कई बार आती है कि सर जोड़े या ना जोड़े। बस एक मोटा सा एक प्रिंसिपल याद रखना है, अगर दो डिफरेंट टाइप के ऑफेंसेस जुड़ रहे होते हैं तो फिर वो आपका अलग ऑफेंस बन जाते हैं। अगर एक ही ऑफेंस के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं और वो दूसरे ऑफेंस में भी सेम कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं और कोई ऑफेंस नहीं जुड़ रहा उसमें, बस वही कॉन्स्टिट्यूएंट्स थोड़े एग्रावेट हो गए, तो फिर हम उसको, जो हायर ऑफेंस है उसको पनिश करते हैं। तीसरा आते हैं, और where several acts of which one or more than one by itself or themselves constitute one offense, constitute when combined a different offense. ये मतलब क्या हुआ? मैंने ए ने बी को 5 बार तलवार से काटा, उसके दोनों हाथ काट दिए, उसके पैर काट दिए, 4 एक्ट्स ऑफ ग्रीवियस हर्ट हुए, पर इनका जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट है वो है डेथ। तो जहां पे ये सारी चीजें क्यूमुलेटिवली कोई सेपरेट ऑफेंस बना देती है और ये ऑफेंस बन जाता है कंबाइन होके, तो फिर वो जो सेपरेट कंबाइंड ऑफेंस होता है वो पनिश करेंगे। तो अब हम मर्डर के साथ ग्रीवियस हर्ट नहीं लगाएंगे, क्योंकि नो डाउट ग्रीवियस हर्ट की वजह से ही मरा, पर वो ग्रीवियस हर्ट कंबाइन हो गया और मर्डर बन गया। तो 3 पैराज हैं सेक्शन 71 के। पहला पैरा, जहां पे एक ऑफेंस वेरियस पार्ट्स का होता है, एक ही माना जाएगा। दूसरा, जहां एक ऑफेंस दूसरे ऑफेंस की डेफिनेशन में सेम है, बस थोड़ा एग्रावेशन है और किसी नेचर का ऑफेंस ऐड नहीं हुआ। एंड तीसरा, जहां पे ऑफेंसेस तो थे पर उनको कंबाइन जब किया तो वो अलग ही तरह का ऑफेंस बन गया, तो फिर जो अलग ही तरह का ऑफेंस बना है वो पनिश होगा, छोटे ऑफेंसेस अब ऐड नहीं होंगे। In all these 3 cases, the offender shall not be punished with a more severe punishment than the court which tries him could award for any of these offenses. तो फिर एक ही सजा मिलेगी, अलग अलग सजाएं नहीं देंगे। तो जहां डिफरेंट पार्ट्स थे, एक ही सजा मिलेगी 323 की। जहां ग्रीवियस हर्ट है वहां सिर्फ ग्रीवियस हर्ट की सजा मिलेगी, और जहां ग्रीवियस हर्ट ने मिला के मर्डर बन गया, सिर्फ मर्डर की सजा मिलेगी।
इसके ऊपर इलस्ट्रेशन 1 हमने पढ़ा था, बी पढ़ते हैं. बट इफ ए, ये बी इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना. Illustration B. But if A is, while A is beating Z, Y interferes. And A intentionally strikes Y. Here, as the blow is given to Y, is no part of the act whereby A voluntarily causes hurt to Z. A is liable to one punishment for voluntarily causing hurt to Z and another blow given to Y. एक जनरल प्रिंसिपल निकलता है यहां. हर इंडिविजुअल सेपरेट है फॉर द पर्पस ऑफ क्रिमिनल लॉ. हर इंडिविजुअल के अपने राइट्स हैं. कोई भी अक्यूज्ड अगर किसी भी एक विक्टिम का राइट इन्फ्रिंज करता है तो वो अलग लायबल है उसके लिए. तो जहां पे मैं एक आई एम अ टेररिस्ट और मैं एक जगह एक भीड़ में जाता हूं, मैं डर गोली चलाता हूं, 10 लोग मर जाते हैं. 10 सेपरेट केस होंगे 302 के. हर विक्टिम अलग केस है. ट्रांजैक्शन एक है पर 10 विक्टिम थे. ये कहां लिखा है? ये इस इलस्ट्रेशन में से निकलता है. जहां ए जेड को चांटा मार रहा था, वाई बीच में आ गया, उसने कहा क्यों मार रहा है, उसने कहा तू भी खा ले, उसको भी एक दे दिया. तो अब 2 केस बनेंगे. पर अगर वो जेड को ही मारी जा रहा है, 100 चांटे मार रहा है, एक केस बनेगा. पर अगर वाई को एक चांटा भी मार दिया, वाई अलग आदमी है, 2 सेपरेट केस बनेंगे. इसीलिए रेप हो, मर्डर हो, कोई भी ऑफेंस हो, अलग विक्टिम का मतलब है अलग ऑफेंस. ट्रांजैक्शन एक हो सकता है बट ऑफेंसेस अलग होंगे. सो आई होप आई एम क्लियर ऑन सेक्शन 71. इसका जो बी इलस्ट्रेशन है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको याद रखना है. ओके, नाउ कमिंग बैक टू आवर सेक्शन 31. When a person is convicted at one trial of 2 or more offenses, the court may, subject to the provisions of 71, subject to the provisions of 71 का मतलब क्या है? वो चीजें जो हमें 71 में बताई हैं वो याद रखनी है. कि कोर्ट जब फ्रेम करेगा चार्जेस तो 325 के साथ 323 नहीं लगाएगा. जहां पे ग्रीवियस हर्ट्स 326 4 हैं और उसकी वजह से मरता है आदमी, whoever causes death by causing 4 grievous hurts. Now here the grievous hurts will not be separately charged, neither will punishment be given for grievous hurts. Murder की punishment दी जाएगी. So when a person is convicted at one trial of 2 or more offenses, the court may, subject to the provisions of 71 IPC, sentence him for such offenses to the several punishments prescribed therefore which the court is competent to inflict. Such punishments, when consisting of imprisonment, to commence the one after the expiration of the other. ये सारी punishments consecutive होंगी. So please remember, consecutive is the rule. एक punishment खत्म होने के बाद दूसरी punishment शुरू होगी. So ये एक बहुत important point है. As a general rule, all offenses have to be tried separate, have to be treated separately. Though they are being tried jointly, but their punishments have to be laid down differently and have to be suffered separately. ये important point है. ये general rule है. इसका मतलब ये हो गया, कल को जब आप जज बनते हो,
आपने एक सजा दे दी कि इस ऑफेंस के लिए 2 साल, इस ऑफेंस के लिए 2 साल, इस ऑफेंस के लिए 2 साल। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये पहले 2 साल काटेगा, फिर 2 साल काटेगा, फिर 2 साल काटेगा, यानी कि वो 6 साल काटेगा। अगर आप चुप रहे और अगर आपने नहीं लिखा कि ये कंकरेंट होगा, तो वो फिर कंसेक्यूटिव माना जाएगा। There are a lot of Supreme Court judgment on this, where the magistrate or the judge fails to clearly write that it is concurrent, it shall be deemed to be consecutive. Reason being, Section 31. Each punishment, each sentence shall follow the other. So one thing which 31 tells us, all the punishments, all the sentences shall be consecutive in nature. In such order as the court may direct. इसको अलग लिखो। एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 31 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मेरी बात याद रखना। बहुत क्वेश्चन तीनों फोरम्स में आते हैं। इन सच ऑर्डर एज द कोर्ट में डायरेक्ट। मैंने रेप की सजा दे दी 10 साल, उसके बाद मैंने उसको जो पिटाई की उसकी दे दी 3 साल, उसके हाउस ब्रेकिंग घर में घुसा था मैं, उसकी दे दी 3 साल। 10 साल 3 साल 3 साल। अब मैं ये बोल सकता हूं कि पहले 10 साल काटेगा, फिर हाउस ब्रेकिंग काटेगा, फिर ग्रीवियस हर्ट काटेगा। तो कौन सी सजा पहले काटेगा, वो भी जज का प्रेरोगेटिव है कि वो राइट करे। आप कहोगे सर क्या फर्क पड़ता है? फर्क क्या पड़ता है? पहले वो काट लिया, वो काट ले, काटनी तो सारी है उसने। पड़ता है। अब उस लॉ में हम आते हैं, कहां पड़ता है। पहले खत्म कर ले लाइन, फिर आते हैं। The one after the expiration of the other in such order as the court may direct, unless the court directs that such punishments shall run concurrently. Unless की कोर्ट स्पेसिफिकली कहे कि ये कंकरेंट हैं, सारे सेंटेंसेस कंसेक्यूटिव होंगे, एक के बाद एक चलेंगे। Each offense is to be treated separately, tried jointly, but then punished separately, and also it will be punished one after the other consecutively. This is the general rule. An exception is that the court, if in its wisdom feels that it should be concurrent, then it can make it concurrent. It is totally the prerogative of the court. अब हम आते हैं एक प्रॉब्लम पे, और अब मैं आता हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। What will happen अगर मैंने लाइफ इंप्रिजनमेंट दे दिया? अगर मैं लाइफ इंप्रिजनमेंट दे रहा हूं और बाकी मैंने, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, मैंने एक लाइफ इंप्रिजनमेंट दे दी, लड़की का रेप किया, उसका मर्डर कर दिया, लाइफ इंप्रिजनमेंट दे दी। मर्डर का तो मैंने उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट दे दी, जो उसने रेप किया था 10 साल दे दी, घर के अंदर घुसा था 4 साल दे दी। तो मर्डर की मैंने लाइफ इंप्रिजनमेंट दे दी, मर्डर में ये रेप की मैंने 10 साल दे दी, और घर में घुसने की 4 साल दे दी। लाइफ इंप्रिजनमेंट क्या होती है? लाइफ, फुल लाइफ,
तो जो आदमी पूरी लाइफ के लिए अंदर चला गया वो कहेगा ठीक है अब जितने मर्जी लगा दो, लाइफ में तो सारा कुछ आ जाता है, हाथी के पैर में सारे पैर आ जाते हैं। तो क्वेश्चन ये उठता है कि अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट मुझे दे दी गई और साथ में रेप का दे दिया गया और साथ में हाउस ब्रेकिंग दे दिया गया, तो फिर तो जितने ऑफेंसेस हैं उनका तो कोई मायने नहीं रखते, लाइफ में सब कुछ आ गया। कल को अगर मैं छूट जाता हूं लाइफ में, अगर मुझे कम्यूटेशन हो जाता है तो मैं सारी चीजें बच गया, मैं तो कहूंगा लाइफ में सब आ गया। सपोज मैंने 2 लोगों का मर्डर किया, 2 लाइफ मिल गई, अब एक लाइफ के बाद दूसरी लाइफ कहां से आएगी? कंसेक्यूटिव कैसे करोगे लाइफ? सो एक मूड क्वेश्चन निकल आया कि सपोज एक कॉन्विक्ट ने 3 लोगों को मर्डर किया है, 302 302 302, 3 लाइफ इम्प्रिजनमेंट्स मिल गई उसको और यहां लिखा है कंसेक्यूटिव। तो एक लाइफ के बाद दूसरी लाइफ और उसके बाद तीसरी लाइफ, कितने उसकी, वो ही इज नॉट अ कैट के 9 लाइव्स है उसकी, तो क्या होगा? यहां तो क्लियर डायरेक्टिव है कि नहीं जी, यहां तो कंसेक्यूटिव देने आपने। इसके ऊपर एक पूरा लैंडमार्क जजमेंट है, ये पूरा लैंडमार्क जजमेंट हमें पूरी तरह मास्टर करना है। And I'm going to spend this time completely on this complete judgment. I have this complete judgment, it's a thick judgment in front of me. I would like to discuss this whole judgment because this judgment clears so many aspects. This famous judgment is Muthu Ramalingam versus state represented by Inspector of Police. Muthu Ramalingam, MUTHURAMALINGAM, Muthu Ramalingam versus state represented by Inspector of Police. ये 19 जुलाई 2016 की जजमेंट है। ये 5 बेंच डिसीजन है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का डिसीजन है। इसमें क्वेश्चन क्या उठा कि सेक्शन 31 कहता है कि एक के बाद एक दी जाएगी, तो अगर किसी को 2 या 2 से ज्यादा लाइफ इम्प्रिजनमेंट्स एक ट्रांजैक्शन में दे दी गई तो फिर कंसेक्यूटिव कैसे करोगे? इसके अंदर सबसे पहले डिस्कस किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब क्या है, उसी में चलते हैं। लाइफ इम्प्रिजनमेंट just like to go chronologically in this judgment. ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच क्यों बैठा? क्वेश्चन ये उठा कि अगर किसी को एक वन ट्रांजैक्शन में एक टाइम पे उसने 3 आदमियों को मार दिया, 2 आदमियों को एक टाइम पे मार दिया, if there is a multiple life imprisonment sentence in one transaction, will they run consecutively as per section 31 CRPC? Now in this, we had 2 decisions of the Supreme Court earlier. Kamla Nantha, KAMALANANTHA, Kamla Nantha versus State of Tamil Nadu, 2005 Supreme Court, and Sanaullah Khan, Sanaullah Khan, SANAULLAH, Sanaullah Khan versus State of Bihar, 2013 सुप्रीम कोर्ट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था that section 31 CRPC is very clear
कोई भी सेंटेंस हो वो कंसेक्यूटिव होगा। और इन दो जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर एक ट्रांजैक्शन में दो या दो से ज्यादा लाइफ इंप्रिजनमेंट दी गई हैं तो वो कंसेक्यूटिव होंगी। दैट मींस if two or more life imprisonments are given in one transaction, they will, एक पहले लाइफ imprisonment खत्म करेंगे, उसके बाद दूसरी शुरू होगी। इसके ठीक विपरीत there were two opposite judgments. There was a 3-judge bench in O.M. Cherian, Cherian versus State of Kerala, 2015 Supreme Court, and another 3-judge bench decision in Duryodhan Raut, Duryodhan, Duryodhan, Duryodhan Raut, Rout Raut versus State of Orissa, again 2015 Supreme Court. दो जजमेंट्स पहले आई कमलंथा की और सनाउल्लाह खान की, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 31 हैज टू बी फॉलोड इन लेटर एंड स्पिरिट। इवन अगर दो लाइफ इंप्रिजनमेंट्स हैं तो वो कंसेक्यूटिव होंगी। बट इनको उल्टा करने के लिए थ्री जज दो डिसीजन आते हैं। एक आता है O.M. चेरियान का और एक आता है दुर्योधन राउत का, दोनों 2015 की। वो कहते हैं एक आदमी को मरने के बाद दूसरी लाइफ इंप्रिजनमेंट कैसे शुरू करोगे, तो हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते। तो 2+2 कॉन्फ्लिक्टिंग डिसीजंस आ गए सुप्रीम कोर्ट के। दो कहते हैं कंसेक्यूटिव होना चाहिए और दो कहते हैं कि नहीं, कंकरेंट ही हो सकता है, कंसेक्यूटिव नहीं हो सकता। इस चीज को डिसाइड करने के लिए ये 5 जजेस का बेंच बैठा है। नाउ पहला क्वेश्चन क्या उन्होंने क्लैरिफाई किया कि सेक्शन 31 के अंदर दो एसेंशियल्स सेटिस्फाई होने जरूरी है। सेक्शन 31 is attracted only in cases where two essentials are satisfied. Firstly, the person is convicted in one trial, and secondly, the trial is for more than 2 offenses. So the trial is for 2 or more offenses. अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है तब सिर्फ सेक्शन 31 आता है। तो पहला, एक ट्रायल है और एक ट्रायल में 2 से ज्यादा ऑफेंसेस का कन्विक्शन हो रहा है। नाउ अब दिक्कत ये आती है कि लाइफ इंप्रिजनमेंट का मतलब क्या है। ये कंफ्यूजन था, बहुत सारे कोर्ट्स में बहुत बार कंफ्यूजन रहा है। लाइफ इंप्रिजनमेंट क्या है? अगर मैं I go to section 45 IPC, life means the entire life of a human being. What is 45 IPC? What is life? Entire life of a human being. And what is imprisonment? General Clauses Act, जो जेल में रहते हैं। So imprisonment for life means imprisonment for the entire life of a human being. ये चीज सबसे पहले क्लियर की 1961 में गोपाल विनायक गोडसे versus State of Maharashtra. This matter was clarified for the first time by the Honorable Supreme Court by a constitution bench in Gopal Vinayak Godse versus State of Maharashtra, 1961 Supreme Court, in which it was held that life imprisonment means that the convict is required to serve the remainder of his life in prison till his death. This thing was reiterated in a catena of further judgments of the Honorable Supreme Court. We have Dalbir Singh versus State of Punjab, 1979. We have State of Punjab versus Joginder Singh, 1992. We have Madhuram
versus Union of India, 1981, which is a landmark, in which it was very clearly held that imprisonment for life means until the last breath of the prisoner. Also, we have Ashok Kumar versus Union of India, 1991. In light of Section 45 IPC, it means full and complete span of life in imprisonment in the jail. Lakshman Naskar, NASKAR versus Union of India, 2000 Supreme Court. Life sentence is nothing but lifelong imprisonment. Also, then we have Swami Shraddhanand versus State of Karnataka, 2008. We have Union of India versus Sriharan, 2015 Supreme Court. And there is a whole catena of judgments on this, in which the legal position of a life imprisonment has been again and again reiterated by the Honorable Supreme Court, that life imprisonment means that the convict lives entire life of his in jail, in imprisonment. अब क्वेश्चन ये उठता है, कंफ्यूजन क्यों आ रही है? लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब, कोई बच्चे को भी बोलो तो वो कहेगा जी लाइफ का मतलब तो लाइफ होता है. There is no doubt, not an iota of doubt on the fact that life imprisonment basically means imprisonment for life. तो ये कहां से बातें उठ गई कि जी 14 साल के लिए होती है, 20 साल के लिए होती है? Now, Section 55 हमें अलाउ करता है कॉम्यूटेशंस. 55 IPC वो हमें कहता है कि कोई भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट को आप कम्यूट कर सकते हो, प्रोवाइडेड 14 साल हो गए हों. अगर आपके 14 साल हो गए हैं जेल में, तो द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अगर चाहे तो आपसे पूछे बिना आपकी लाइफ इम्प्रिजनमेंट कम्यूट कर सकती है. कम्यूटेशन में क्या होता है, हम दूसरी पनिशमेंट दे देते हैं, छोटी पनिशमेंट, बाहर आ जाओ, चलो ठीक है तुम कम्युनिटी ये सेवा करोगे, कोई भी दे सकते हैं. वो एक राइट नहीं है, वो प्योरली द विल ऑफ द एग्जीक्यूटिव है. हमारे पास सीआरपीसी में 2 सेक्शन है, रादर 3 है. 432 सीआरपीसी, 433 सीआरपीसी, 433A सीआरपीसी. 432 सीआरपीसी कहता है कि एप्रोप्रिएट स्टेट गवर्नमेंट कोई भी सजा को रेमिशन दे सकती है, कम कर सकती है. 433 सीआरपीसी कहता है कि जहां किसी को डेथ पेनल्टी दी गई हो, उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट में कम्यूट किया जा सकता है. सेक्शन 55 आईपीसी कहता है कि 14 साल के बाद लाइफ इंप्रिजनमेंट को कम्यूट किया जा सकता है. तो अगर हमने किसी लाइफ कॉन्विक्ट को बाहर, लाइफ इंप्रिजनमेंट के कॉन्विक्ट को बाहर निकालना है, तो स्टेट गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है कि उसको 14 साल के बाद निकाले या ना निकाले. द कॉन्विक्ट कैन नॉट डिमांड एज अ राइट. उसके लिए तो कायदे से टिल ही डाइज वो जेल में है. नाउ अब प्रॉब्लम क्या आया कि गुड बिहेवियर के रेमिशंस मिलते हैं जेल में, या फिर जैसे कोई सेनेटरी आ गई गुरुओं की या कोई ऐसा हो गया, तो बहुत सारे रेमिशंस मिलते हैं सबको. अब कोई लाइफ कॉन्विक्ट है, 14 साल के बाद उसका कम्यूटेशन होना है.
अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उसका 14 साल के बाद लेती है। बट अब क्या होता है, उसको रेमिशन मिल चुके हैं 5 साल के, तो अब वो क्या करता है कॉन्विक्ट, कि 5 साल के उसको मिल गए हैं रेमिशंस, यानी कि आफ्टर 9 years वो अब अप्लाई कर देता है कि सर 14 साल के बाद तो मेरा कम्यूट कर सकते हो, 5 साल मुझे रेमिशन मिल गए हैं, तो सर 5 साल ऐड कर दो मेरे 9 साल में जो मैं काट चुका हूं, 14 साल हो गए, अब प्लीज मेरा रेमिट, आप मेरा रेमिट कर दो या मेरा कम्यूट कर दो सर प्लीज। 9 साल में बाहर आ गया, बाहर आके उसने फिर मर्डर कर दिया। पंजाब का मामला है, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, उन्होंने कहा क्या मजाक बना दिया, इट्स अ मॉकरी ऑफ जस्टिस, द होल जस्टिस सिस्टम हैज गॉन टू द डॉग्स। गवर्नमेंट कोई लॉ बनाए इसके बारे में, इसके फलस्वरूप हमारा 433A बना सीआरपीसी, जिसमें लिखा गया कि कोई भी रेमिशन, कोई भी कम्यूटेशन अलाउड नहीं है अगर उसने 14 साल एक्चुअली जेल में नहीं काटे। उसका कितने भी रेमिशन, उसको 5 साल का रेमिशन, 6 साल का गुड बिहेवियर का, 8 साल का रेमिशन मिला हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 14 साल के बाद ही अगर एक्चुअली उसने 14 साल जेल में काटे हैं, सिर्फ तब ही इज नाउ एंटाइटल्ड टू एनी कम्यूटेशन और रेमिशन। तो 433A ने मैंडेटरी बना दिया कि 14 साल तो एक्चुअल जेल में रहना ही है। हाउएवर एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है हमारे पास, प्रेसिडेंशियल पार्डन, गवर्नर्स पार्डन, ये दो अलग चीजें हैं। जो हमारे पास प्रेसिडेंशियल पार्डन तो आता है आर्टिकल 72 में, और गवर्नर का पार्डन आता है 161, आर्टिकल 161 में। नाउ प्लीज रिमेंबर, प्रेसिडेंशियल पार्डन किसी भी ऑफेंस का, किसी भी सजा का है, इवन डेथ पेनल्टी का है। गवर्नर की जो पार्डन की पावर है वो भी एक्सट्रीम है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट पार्डन कर सकता है, बट डेथ पेनल्टी नहीं कर सकता। यहां पे फर्क है पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर। प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर ज्यादा है। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है पार्डन की, ये सीआरपीसी से बंधी हुई नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स गिवन to the president under Article 72 and to the governor under Article 161 are not subservient to any procedural law. वो उनकी पावर एज अ सॉवरेन है। इसीलिए प्रेसिडेंट या गवर्नर जब भी चाहें किसी भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट को कभी भी पार्डन या कम्यूट कर सकते हैं। तो प्रेसिडेंट की पावर या गवर्नर की पावर 432, 433, 433A सीआरपीसी से अधीन नहीं है। कई जगह ऐसा एक और कंफ्यूजन आ जाता है कि जी लाइफ इम्प्रिजनमेंट मींस 20 साल, जजमेंट्स हैं हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के। वो गलत फहमी है। वो गलत फहमी इसलिए है क्योंकि सेक्शन 57 कहता है कि जहां टर्म्स की बात करें हम, लाइफ जहां पे टर्म्स का रेफरेंस है लाइफ इम्प्रिजनमेंट का, वहां पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट को हम 20 इयर्स मानेंगे। तो ऑनरेबल कोर्ट्स ने एक गलत ये इसका आइडिया ले लिया कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब तो 20 साल ही होता है। तो कई बार क्या हुआ, कोर्ट्स ने ये डिसाइड कर लिया कि जी 14 साल होता है क्योंकि 14 साल के बाद कम्यूटेशन है। और कुछ बार कोर्ट्स ने ये गलती डिसीजन ले लिया कि नहीं जी लाइफ इम्प्रिजनमेंट तो 20 साल की होती है, क्योंकि आईपीसी भी मानती है कि 20 साल की ही होती है, तो हम भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट 20 इयर्स की मानते हैं। ये दोनों चीजें निगेट कर देता है मुथु रामलिंगम।
और भी जजमेंट्स हैं, बट अभी हम क्योंकि मुथुरामलिंगम की बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जजमेंट की बात कर रहे हैं, तो हम इसी के साथ जाएंगे। तो ना ये 14 साल है, ना ये 20 साल है, ये पूरी उम्र है। अगर कम्यूट करना है तो या तो प्रेसिडेंट के पास पावर है या गवर्नर के पास है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, उसको अलग रखेंगे, उसको सीआरपीसी के साथ नहीं जोड़ेंगे। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो फिर 432, 433 एंड 4 रेड विद 433 ए सीआरपीसी से अधीन है। स्टेट गवर्नमेंट की पावर ऑफ कॉम्यूटेशन इज सब्जेक्ट टू सेक्शन 55 आईपीसी, read with 432 power of remission of a state government, 432 CRPC, power of commutation of a state government, section 433 CRPC, और मिनिमम 14 साल वो रहेगा, तब आप रिमिट करोगे या कम्यूट करोगे सेक्शन 433 ए सीआरपीसी। एक पूरा मैंने आपके सामने इंटरलिंक कर दिया है, जो पूरा लॉ है इसके सामने। तो एक चीज तो क्लियर होगी कि लाइफ इंप्रिजनमेंट का मतलब होता है टिल द लास्ट ब्रेथ। अब जब हमारी पहला पॉइंट क्लियर हो गया दैट लाइफ इंप्रिजनमेंट मींस टिल द लास्ट ब्रेथ, अब क्वेश्चन उठता है कि एक लाइफ इंप्रिजनमेंट के बाद जब वो मर गया, लाइफ इंप्रिजनमेंट मींस लास्ट ब्रेथ, तो लास्ट ब्रेथ के बाद उसकी दूसरी लाइफ इंप्रिजनमेंट कैसे शुरू करोगे? दिस मैटर वाज नाउ टेकन अप बाय मुथुरामलिंगम। इसके अंदर उन्होंने हवाला लिया सेक्शन 427 का। 427 एंड सेक्शन 31, 427 सीआरपीसी, इनको इकट्ठे पढ़ना है। क्यों? 31 डील्स विद वन ट्रायल, 427 डील्स विद डिफरेंट ट्रायल्स। तो जहां एक ही ट्रायल में 2 लाइफ इंप्रिजनमेंट मिल गई, और जहां 2 अलग ट्रायल थे और 2 लाइफ इंप्रिजनमेंट मिल गई। पहले एक मर्डर किया, जेल में था, पैरोल पे गया, दूसरा मर्डर करके आ गया, दूसरा केस बना, 1 साल बाद गया था पैरोल में, 2 साल बाद गया था, दूसरा मर्डर करके फिर उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट हो गई। अब वहां पे भी ये पॉइंट आता है 427 में। वो 27 में ये पॉइंट आता है कि जहां वो ऑलरेडी एक लाइफ इंप्रिजनमेंट काट रहा है और अब उसने दूसरा ऑफेंस कर दिया जिसमें भी उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट मिल गई, तो अब सीआरपीसी कहता है कि वो कंसेक्यूटिव होंगे। सीआरपीसी में इतनी अकल है कि मरने के बाद दूसरी इंप्रिजनमेंट कैसे दोगे? एक बार चलते हैं 427, लेट्स गो टू सेक्शन 427 के लास्ट क्लॉज को देखते हैं। फोर 427 when a person already undergoing a sentence of imprisonment is sentenced on a subsequent conviction, वहां क्या था? At a single trial, यहां क्या है? Subsequent conviction to imprisonment or imprisonment for life. Such imprisonment or imprisonment for life commence at the expiration of the imprisonment to which he was previously sentenced, unless the court directs that the subsequent sentence shall run concurrently with such previous sentence. तो जहां subsequent conviction है, तो पहले वो वाली conviction खत्म करेगा, फिर ये वाली conviction शुरू करेगा। तो जहां पे पहले वो ऑलरेडी 10 साल काट रहा है और फिर कुछ और ऐसा ऑफेंस करके आ जाता है, फिर 7 साल की सजा हो जाती है, तो पहले 10 साल काटेगा, फिर 7 साल काटेगा, अनलेस कि जो दूसरा कोर्ट है वो इसको कंकरेंट कर दे। तो जहां वो कंकरेंट कर दे कि पहली सजा जो चल रही है उसके साथ साथ ये भी आज से ही चल पड़ेगी, तो फिर दोनों सजाएं, दोनों डिफरेंट ऑफेंसेस की सजाएं इकट्ठी चलेंगी। एंड वेरी क्लियरली इट सेज, unless the court directs that the subsequent sentence shall run concurrently with such previous sentence. हम उसके बाद आते हैं सीधा सबसेक्शन 2 पे।
When a person already undergoing a sentence of imprisonment of life is sentenced on a subsequent conviction to an imprisonment for a term for imprisonment for life, the subsequent sentence shall run concurrently with the previous sentence. तो सेक्शन 427 देखा जाए तो it is almost the twin brother of section 31. Section 31 deals with a single trial. Section 427 deals with different trials. जहां एक ट्रायल है और उसमें 2 लाइफ मिल गई, तो अब क्या होगा ये डिसाइड करना है हमने मुथु रामलिंगम में। पर 427 ऑलरेडी क्लियर कर रहा है कि सब्सिक्वेंट कन्विक्शन में जो सजाएं होंगी वो कंसेक्यूटिव होंगी। पहले वाली सजा, पहले वाले कन्विक्शन की सजा पहले काटेगा, फिर ये काटेगा, अनलेस की कोर्ट सेज कि दोनों कंकरेंट होंगे। हाँ, जहां तक लाइफ इंप्रिजनमेंट का सवाल है, अगर वो पहले लाइफ इंप्रिजनमेंट काट रहा है या इवन अगर टर्म काट रहा है और बाद में लाइफ मिलती है, तो वो दोनों कंसेक्यूटिव होंगी अगर लाइफ है तो। नाउ कारण क्या है, लाइफ का मतलब तो लाइफ है। तो जहां मुझे बाद में लाइफ मिल गई और पहले मुझे सपोज ए को पहले 10 साल की सजा है और बाद में उसको लाइफ के लिए इंप्रिजनमेंट मिल गई, तो लाइफ में तो यहां खत्म हो ही जाना है, तो ऑटोमेटिकली 10 साल वाली तो साथ ही चलेगी। या अगर वो भी लाइफ है और ये भी लाइफ है, तो दोनों लाइफ कंसेक्यूटिव होंगी। So there is a statutory provision that whenever there is a life imprisonment, other punishments will automatically become consecutive. Concurrent. So यहाँ पे 427 का बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैं दोबारा पढ़ना चाहूंगा, डोंट मिस दैट लाइन। 427 का, when a person are already undergoing a sentence of imprisonment for life is sentenced on a subsequent conviction to an imprisonment for a term or imprisonment for life, the subsequent sentence shall, may nahi hai, shall run concurrently with such previous sentence. अब 427 एक स्टैट्यूटरी प्रोविजन है, इसको उठाया मुथु रामलिंगम ने। मुथु रामलिंगम ने कहा कि हमें सीआरपीसी खुद ही बता रहा है कि जहां एक लाइफ इंप्रिजनमेंट बाद में दे दी गई हो, तो पहला चाहे टर्म इंप्रिजनमेंट वो और कोई कन्विक्शन ले रहा है या इवन लाइफ भी कर रहा है, तो दोनों कंकरेंट हो जाएंगे। क्यों? लाइफ मींस लाइफ। तो नाउ द नेक्स्ट एस्पेक्ट व्हिच मुथु रामलिंगम टुक अप वाज that since there is a statutory provision in section 427 that if a convict is already undergoing a term imprisonment, term means 10 साल, 5 साल, 3 साल, or a life imprisonment, and subsequently is again convicted in a life imprisonment, then the two convictions will run concurrently. But अगर लाइफ नहीं है तो फिर कंसेक्यूटिव होंगी, अनलेस कि कोर्ट कहे कि नहीं बाद वाली कन्विक्शन भी कंकरेंट करे। ये क्लियर किया गया। सो द सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाइड इन नो अनसर्टेन टर्म्स, आई कोट सेक्शन 427 of CRPC, according to which any person already undergoing a sentence of imprisonment for life or a term, if sentenced to undergo imprisonment for life, the subsequent sentence so awarded shall run concurrently. Hence, we can apply the same principle for section 31. So that means now if 2 life imprisonments are granted under section 31 in the same trial, both will be concurrent. So section 427, and now Muthu Ramalingam brings 31 on parallel with this. But अब एक क्वेश्चन उठा, अब क्वेश्चन ही उठा कि चलो ए को 2 लाइफ इंप्रिजनमेंट मिल गई, उसने ब्रूटल रेप किया था और मर्डर किया था,
रेप की भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल गई, डेथ की भी, मर्डर की भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल गई, 2 लाइफ मिल गई। या उसने 2 लोगों का मर्डर किया था, 2 लाइफ मिल गई उसको। 14 साल के बाद गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने एक उसकी लाइफ इम्प्रिजनमेंट कम्यूट कर दी। 14 साल पूरे हो गए, उसने मूव किया, गिड़गिड़ाया कि जी मेरे बच्चे छोटे थे वगैरह वगैरह। गवर्नमेंट ने कहा चलो ठीक है, हम तुम्हारी कम्यूट कर देते हैं। अब मुथु रामालिंगम कहता है एक लाइफ इम्प्रिजनमेंट कम्यूट हुई है, दोनों नहीं हुई है, अभी भी वो अंदर ही रहेगा अपने लास्ट मोमेंट तक। तो अगर गवर्नमेंट को उसको छोड़ना है तो दोनों लाइफ इम्प्रिजनमेंट्स को अब कम्यूट करना पड़ेगा। या अगर एक लाइफ इम्प्रिजनमेंट के अंदर रेमिशन दिया है तो नहीं छूटेगा, लाइफ भर अंदर रहेगा, तब भी दोनों लाइफ में रेमिशन देना पड़ेगा। So please remember, remission or commutation in one life imprisonment does not automatically mean that the other life imprisonment has also been remitted or commuted. तब भी जेल में रहेगा। ये मामला आया था अगेन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने, रंजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़। रंजीत सिंह वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़। It was held the grant of any remission or commutation qua the earlier sentence of life imprisonment will not ipso facto benefit the prisoner qua the second life imprisonment. The subsequent sentence will continue and remain unaffected by the remission or commutation of the earlier sentence. तो जहां मैंने एक रेमिशन दे दिया, एक लाइफ इम्प्रिजनमेंट का दिया है, तो ये नहीं कि सारी मेरी लाइफ इम्प्रिजनमेंट्स खत्म हो गई। तो जहां एक कॉन्विक्ट 2 लाइफ इम्प्रिजनमेंट काट रहा था, 2 मर्डर करके आया था, एक केस में रेमिशन या कॉम्यूटेशन हो गया, तो दूसरा लाइफ इम्प्रिजनमेंट अभी ज्यों का त्यों है, वो अभी भी लाइफ भर, जिंदगी भर जेल में रहेगा। तो अगर अब उसको स्टेट छोड़ना चाहती है तो उसको 2 रेमिशन दे, दोनों लाइफ इम्प्रिजनमेंट्स का अलग रेमिशन दे या अलग कॉम्यूटेशन दे, अदरवाइज वो जेल में ही रहेगा। ये सुप्रीम कोर्ट का ये वाला जजमेंट है। आई थिंक वी रन आउट ऑफ टाइम। I'll take it up from here. I'm not finished with this judgment. मैं इसको अभी है, इसको आधा घंटा लगेगा और 15-20 मिनट तो कम से कम लगेंगे। We'll take it up from here in my next lecture. इसको प्लीज 2-3 बार सुनो इस लेक्चर को, ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, ये सारे फोरम्स में एग्जाम में आती है और हमारी सीआरपीसी के पकड़ के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है। We'll take it up from here. Thank you. God bless.